Hello student, good morning to all of you. Once again welcome to class 12th accountancy. And beta our chapter is going on accounting ratio. Beta in this lecture we are going to learn about solvency ratio. In last lecture we have learned about liquidity ratio and under liquidity ratio, current ratio as well as quick ratio, and today we will learn about solvency ratio. Under solvency ratio we will learn about four ratio. First one is debt equity ratio, second one is total assets to debt ratio, third one is proprietary ratio, and last one interest coverage ratio. These are our ratio. So what is solvency ratio? Solvency of business refer to the ability of business to pay its long term liability. ठीक है, it is also known as the long term solvency ratio. Long term solvency ratio because it is going to check the एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेप्थ, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में कंपनी कितना कैपेबल है, या लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने डेप्थ को पे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी. देयरफॉर सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेप्थ. क्लियर? एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेप्थ. ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेप्थ. द सॉल्वेंसी रेशियो आर डेप्थ रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल, बेटा ये है प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. क्लियर? सो सॉल्वेंसी रेशियो में हमने पढ़ लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं रेशियो. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट debt equity ratio. What is debt equity ratio? Debt equity ratio measures the relationship between long term debt and equity. Normally 2:1 is a good debt equity ratio. So what is debt equity ratio? The ratio which is going to check the relationship between debt and equity. The ratio which is going to establish the relationship between debt and equity known as the debt equity ratio. And ideal ratio will be कितना होगा? 2:1 will be considered as a ideal ratio. And the formula how you will calculate? The formula of debt equity ratio will be long term debt upon short term shareholders fund or equity. The formula long term debt or debt upon equity. इसका फॉर्मूला बेटा क्या होगा? डेप्थ अपॉन इक्विटी. डेप्थ मीन्स डेप्थ अपॉन equity. Here debt means long term debt and equity means shareholder fund. ठीक है, and here you will see under long term debt what you have to take. Under long term debt long term borrowings or long term provisions. ठीक है, in this way also you can calculate. और debt means here long term debt में total debt minus current liability also you can get long term debt, और capital employed minus equity also you can get long term debt, or simple debt plus equity. Capital employed how you will calculate? Suppose in your question capital employed is not given, then capital employed how you will calculate? Debt plus equity. तो यानी कि capital employed minus equity you will get debt. और लास्ट हमारा जो मेथड है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. इन दिस वे ऑल्सो यू विल गेट लॉन्ग टर्म डेप्थ. सिंपल सा ऑलमोस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे ये वाला मेथड है बेटा. लेकिन अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट लॉन्ग टर्म डेप्थ. एंड इक्विटी, इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल. सो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. और total assets minus total debts you will get what? You will get capital employed, so you will get equity. जो हमारा ये 11 का फॉर्मूला लग रहा है C इक्वल टू A माइनस L. 11 तुमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन. C कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यू विल गेट कैपिटल, और कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड. अगेन नॉन करेंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट trade investment, working capital minus non-current liabilities. These are different method to calculate equity and to calculate debt. ठीक है, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपके आइडिया क्लियर होते चले जाएंगे. बेटा सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है
टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, बेटा इसके नेम से ही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला विल बी टोटल एसेट्स अपॉन डेप्थ, ठीक है। सो what is total assets to debt ratio? It is the ratio which establishes the relationship between total assets and debt, means long term debt. So it establishes a relationship between total assets and long term debts of the enterprises, ठीक है। And how you have to measure debt, total assets to debt ratio, total assets upon debt, debt का मतलब यहाँ पर long term debt है। total assets means नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, डेप्ट मीन्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा पॉइंट्स आपके सेम रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला सामने रखना है एंड देन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, अब इसका मेन पॉइंट क्या होगा, द हायर रेशियो इंडिकेट दैट द एसेट्स हैव बीन, द हायर रेशियो इंडिकेट, the higher ratio indicate, one second, the higher ratio indicate that the assets have been mainly financed by owner fund and the long term is adequately covered by assets, ठीक है। दैट्स मीन हायर जो आपका इसका रेशियो होगा, तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया है, ऑनर ने ही इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या हो गया कि ऑनर शेयर होल्डर फंड और नेट एसेट्स में क्या रिलेशन है, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड फॉर्मूला विल बी प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो shareholder fund, it expresses the relationship between proprietors and net assets, it expresses the relationship between proprietors and net assets, clear बेटा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो में अगेंस्ट शेयर होल्डर फंड और आपका टोटल एसेट्स क्या होंगी, तो आप एंड एज वेल एज प्रोप्राइटरी फंड क्या होगा, तो प्रोप्राइटरी फंड में आप हमेशा क्या लेंगे, देखो यहाँ पर प्रोप्राइटरी फंड में you will take liabilities approach, दो अप्रोचेज हैं फंड निकालने के लिए, प्रोप्राइटरी फंड निकालने के लिए लाइबिलिटीज अप्रोच है और एसेट्स अप्रोच है। लाइबिलिटीज अप्रोच में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दिस वे यू विल गेट इक्विटी और शेयर होल्डर फंड। सेकेंड अप्रोच है आपका एसेट्स अप्रोच में नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इन दिस वे यू विल गेट ऑल्सो इक्विटी और शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड, इन दिस वे यू विल ऑल्सो गेट, ठीक है। फिर टोटल एसेट्स किस तरीके से हम निकालेंगे, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, प्लस इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आप इसको ये भी बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करेंट एसेट्स। सिंपल सी लैंग्वेज में टोटल एसेट्स में से नॉन करेंट एसेट्स जितनी भी हैं प्लस करेंट एसेट्स आप ले लोगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। जितना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे। लास्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इट इज़ अ रेशियो विच it establishes the relationship between net profit before interest and tax and interest on long term debt। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। हायर द रेशियो ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। तो बेटा इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, हमें नीड क्यों होती है? अगर कोई बंदा बिजनेस को लोन दे रहा है, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि कंपनी इज कैपेबल टू पे इट्स इंटरेस्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जितना अच्छा इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो होगा उतनी ही अच्छी कंपनी की कैपेसिटी होगी अपने डेब्ट के इंटरेस्ट को पे करने के लिए। कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को ईजिली पे कर सकती है, स्पेशली इंटरेस्ट को। मान लो अगर कोई कंपनी अपने इंटरेस्ट को ही नहीं ले पा रही है
देन कंपनी किस तरीके से उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी। बेटा दीज आर आवर बेसिक पॉइंट्स एंड आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिटेल each and every ratio, especially in solvency ratio. First one, debt equity ratio, and we will solve some numerical questions. Thank you.